Hello students, I am Dr. Parag Gadve. In this video I am going to give you some brief information about the quasi contract. So what is basically quasi contract? We know already about the how the contract is established, how there is a need of essential elements to make the contract, and what are the various classification of the contracts on the basis of enforceability according to their express nature. You can identify the basic nature of contract, but there is another type of quasi contract is called as quasi contract, which defined under section 68 to 72. Quasi contracts are so called because the obligations associated with such transaction should neither be referred as a tortious nor contractual, but are still recognized and enforceable, like contract in court. So these quasi contract is recognizable and enforceable, and it gives you the obligations to perform the contract. Right. Another definition by Dr. Jenks suggests about the quasi contract that a situation in which law imposes from a true contract, right? Although no contract, express or implied, has in fact been entered by them, though there is not a contract by express or implied way, but still the situation implies some laws, some obligations on the one party. Now, section 68 to 72 of the contract, quasi contract, describes different cases of quasi contract. Let us check one by one. Claim for first case of quasi contract is claim for necessaries supplied to a person incapable of contracting or on his account. So what it suggests, suppose just read the first three words like claim for necessaries, right? You are claiming for necessaries. Suppose there is one person is mature and another person is not in mature stage. Maybe he is minor, maybe he is lunatic, maybe he is of unsound mind. So that one person is minor and one person is major, responsible, and has a good status in society. So suppose that a major person contracted himself to support that minor person, to is responsible to handle that minor person, can claim for necessaries from his property or estate, from his from the minor's property or minor's estate. वेरी सिंपल मीनिंग में इसका आपको एलेबरेट करता हूँ. सपोज वहाँ एक बंदा अगर वो है कि जो अनसाउंड माइंड का है या फिर माइनर है, जो कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने में इनकेपेबल है एंड ही इज़ नॉट ऑफ साउंड माइंड. सो अगर ऐसे समय में कोई अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैच्योर पर्सन, एक गुड सोसाइटल स्टेटस रहने वाला बंदा अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते हैं, उसकी संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते हैं, तो उसके लाइफ में माइनर पर्सन के लाइफ के फॉर द लिविंग बीइंग जो भी बेसिक नेसेसिटी लगती है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसको पेड करता है. उसके लिए कपड़े रहेंगे, उसके खाना पीना रहेगा, पढ़ाई वगैरह होगा, वॉट एवर इज़ द एक्सपेंसेस, बेसिक नेसेसिटी वाले जो एक्सपेंसेस रहते हैं, वो सभी एक्सपेंसेस दैट मेजर पर्सन, दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन कैन क्लेम फॉर फ्रॉम हिज इस्टेट्स. जो कि माइनर बंदा होगा या फिर अनसाउंड माइंड होगा, उसके प्रॉपर्टी में से या फिर इस्टेट में से ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसके लिए क्लेम कर सकता है. अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे माइनर बंदा ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है? तो ऑब्वियसली माइनर पर्सन कैन नॉट बी मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट, बट द लॉ, बट द कोर्ट इम्पोज दिस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कोर्ट गिव दिस प्रोविजन टू मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट. अदरवाइज ऐसे अगर कोई केसेस में अगर माइनर अकेले हो जाते हैं विदाउट पेरेंट्स, विदाउट गार्डियंस, तो उस केस में उनको संभालने के लिए कोई भी नहीं रह सकता है, या फिर कोई संभालने वाला भी होगा तो उसको उसके अगेंस्ट में क्लेम नहीं मिलेगा, राइट? एंड दैट कॉस्ट हैज़ टू बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू द
basic necessity provided by the responsible person. I hope you understand this example. Even that minor पर्सन के अगर चिल्ड्रंस भी है या फिर वो अनकैपेबल पर्सन के अगर कोई चिल्ड्रन भी है, उनकी वाइफ भी है, तो उनको भी लगने वाली जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी आप क्लेम कर सकते हो अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो उनको संभालने के लिए, राइट. सो दिस इज़ द वन केस ऑफ quasi कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 68. Then there is a second case, that is reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested. सिंपल मीनिंग में इसका आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल. सपोज एक फैक्ट्री अगर है, वो फैक्ट्री अगर मैंने किसी मेरे फ्रेंड की है या फिर किसी एक ओनर की फैक्ट्री है, वो मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये मुझे आप 30 साल के लिए लीज पे दीजिए और मैं उसको चलाऊंगा, राइट. नाउ दैट पर्सन गिव्स मी दैट फैक्ट्री ऑन अ लीज और मैंने उसको चलाना शुरू कर दिया. 5 साल बाद मुझे ये समझ में आया कि 5 साल तक वो ओनर ने उस फैक्ट्री का टैक्स ही पे नहीं किया. सो इन दैट सिनेरियो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, महानगर पालिका बोलो या फिर जो भी एनफोर्समेंट अथॉरिटी है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये टैक्स रिसीव यानी कलेक्ट करने के लिए हम ये फैक्ट्री का ऑक्शन करेंगे, राइट. सो उस केस में वहाँ पे लॉस किसका होने वाला है? वो फैक्ट्री ओनर का तो लॉस होगा नहीं, क्योंकि उसको टैक्स रिएम्बर्समेंट होने के बाद वो तो बचा हुआ पैसा वो ओनर को मिल जाएगा. बट लीज पे मैंने लिया है, मेरा फैक्ट्री चल रहा है, मेरा सब स्टॉप हो जाएंगे, तो आई एम द इंटरेस्टेड पर्सन. तो मैं क्या करूँगा, वो कोर्ट में जाऊँगा या फिर गवर्नमेंट के पास जाऊँगा, उनको बोलूँगा कि भाई ये है अमाउंट आपके टैक्स का, ये टैक्स मैं आपको पे कर देता हूँ. तो मैंने ऑन बिहाफ ऑफ दैट ओनर द लीजी पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स, राइट. तो यहाँ पे ये कोर्ट बोलता है कि यहाँ पे आप पे ये, तो यहाँ पे आपको वो कोर्ट ये सजेस्ट करता है कि आपने जो भी टैक्स किया है वो आपके प्रॉपर्टी में से आपको दिया जाएगा, वो फैक्ट्री के प्रॉपर्टी में से. यहाँ पे फिर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश होता है बाय द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ और कोर्ट, राइट. सो दिस इज द वन अनदर एग्जांपल ऑफ reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested, right. Maybe sometimes it is not only restricted to the factories, but in another cases also this can be possible. So another case of quasi contract is under the section 70, obligation of person enjoying benefit of non gratuitous act. यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट एंड व्हाट इज़ द ग्रेचुइटियस एक्ट. नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट इज ऑब्वियस, ग्रेचुइटियस एक्ट इज व्हाट विच इज़ फॉर द सोशल कॉज और वॉलंटरीली. व्हाट यू डिड इज़ वॉलंटरीली. किसी को अगर डूबने से आपने बचाया है, कहीं पे अगर आग लगी है तो आग बुझाने में हेल्प की है, किसी की इस तरीके से जान बचाने में आपने हेल्प की है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हो, तो ऐसे वर्क के लिए किसी को भी आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू आप क्लेम नहीं मांग सकते हो कि भाई मैंने आपका यहाँ से यहाँ जान बचाने के लिए हेल्प किया है, आपको हॉस्पिटल लेके गया, तो आप मुझे इसका 1000 रुपीज़ दीजिए. दैट कैन नॉट बी क्लेम. किसी का अगर घर जल रहा है, आपने उसका अगर घर जलने से बचाया है या फिर कुछ हेल्प की है, तो जितना सामान आपने उसका बचाया है उसका एस्टिमेशन निकाल के कोई परसेंटेज आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज वॉट एवर यू डिड इज़ ग्रेटिट्यूस एक्ट, राइट. किसी को डूबने से अगर बचाया है तो आप जैसे इंश्योरेंस कंपनी के जैसे उसकी वर्थ निकाल के उसके अगेंस्ट में कितने परसेंटेज उसको रिएम्बर्समेंट मांग सकते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू डिड इट ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, on a gratuitous. This is comes under a gratuitous act. But what is the non-gratuitous act is whenever there is the work is not of a voluntary act, right. For example, uh, for example, suppose uh, there is one factory. अगर मेरी एक फैक्ट्री है और किसी एक मेरे फ्रेंड ने या फिर मेरे साइड में जो भी फैक्ट्री थे उसका अगर रॉ मटेरियल गलती से मेरे फैक्ट्री में आके रह गया,
सो वो रॉ मटेरियल गलती से उसने डाला, या फिर गलती से वहाँ के ट्रांसपोर्ट कंपनी ने वहाँ पे आके डाल दिया। अब लकीली वो रॉ मटेरियल मुझे भी मेरे प्रोडक्शन में लगता है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया तो मैंने उसको पूछे बिना ही किसका है वो पता किए बिना ही वो रॉ मटेरियल मैंने कंज्यूम कर लिया और मेरे प्रोडक्शन में उसको लगा दिया, उसको यूज़ कर लिया। सो इन दैट केस फिर जो जिसका रॉ मटेरियल था वो ढूंढते ढूंढते आ गया, उसको दिखा कि भाई यहाँ पे आके वो ट्रांसपोर्ट अनलोड हो गया था। तो उसने मुझे पूछा तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे तो भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, ना मुझे पूछे बिना यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल आया है, ना आपने मुझे पहले प्रॉमिस किया था, ना कोई ऑफर था, ना एक्सेप्टेंस था, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट था। सो इन दैट केस देर इज अ ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन enjoying ऑफ नॉन gratuitous एक्ट, राइट। तो वेन एवर द वर्क इज डन शुड हैव टू बी डन इट एज अ लॉफुल। तो यहाँ पे फिर वो कोर्ट क्या करता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज करता है कि दो आपके पास अगर वो रॉ मटेरियल आया था बट वो आपको यूज़ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर राइट्स आपके नहीं थे, तो दैट इज अ ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट, राइट। हाँ, आपने अगर वो रॉ मटेरियल संभाल के रखते थे, रॉ मटेरियल आपने उसको वापस दे दिया और फिर रॉ मटेरियल लगने के लिए जो होल्डिंग होल्डिंग कॉस्ट आपको लगती थी, दैट होल्डिंग कॉस्ट यू कैन आस्क अंडर द नॉन ग्रेटिटियस एक्ट, राइट। यू कैन एंजॉय दैट बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट। So, therefore, there may be no contract in between two parties, but law or court impose the quasi contract in such scenarios. Now, there is a fourth case, that is responsibility of finder of goods, right? ये हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम जब फ्रॉम चाइल्डहुड वी लिसन दैट कोई भी गिरी हुई चीज़ उठाने का नहीं, कोई भी मिली हुई जो चीज़ें हैं वो घर पे लेके आने का नहीं, ये हमारा बेसिक हमारे दिस इज पार्ट ऑफ आवर culture, right? There is the responsibility of finder of goods. So whoever is a finder of goods has to responsibly return to good and try to find out the who is the owner of that good. बट अगेंस्ट दिस वर्क ऑल दिस थिंग्स, अगर आपको कोई अगर चीज़ मिली है तो उसको आपको ओनर ढूंढना है या फिर उसका करेक्ट तरीके से उसके ओनर आइडेंटिफाई करने हैं, उसके उनको अगर वो गुड्स अगर डिस्पैच करने हैं, उसके अगेंस्ट में आपने कुछ एक्सपेंसेस किया है, कुछ उसकी होल्डिंग कॉस्ट आपको लगी है, दैट कॉस्ट यू कैन क्लेम। बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे ही अगर आपको कोई अगर गलती से कोई चीज़ अगर मिल जाती है, आपके पास आ जाती है किसी के भी, अगर आप उस चीज़ को सो इन दैट केस कोर्ट इम्पोज अ लॉ अ quasi contract on you that you have to find out the owner of that goods, right? Against this against to find the good owner of the goods, whatever the expenses you bear you can claim from that owner। टिल दैट अगर जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाती, रीएम्बर्समेंट उसका मिल नहीं जाता, क्लेम आपका सक्सेसफुल हो नहीं जाता, तब तक आप वो गुड्स आपके पास रख भी सकते हो, राइट। बट आप उसको यूज़ नहीं करोगे और उसको ये इंटेंशन नहीं होगा होना चाहिए आपका कि आपको उसको वो गुड्स जो मिले हैं अगर बहुत ही सही अगर पसंद आ गया है तो आप उसको कंज्यूम कर लोगे या फिर उसको आपके पास ही रख लोगे, ये आपका इंटेंशन उसमें नहीं होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे इसीलिए सबसे पहले बोला जाता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ अगर आपको मिलती है तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए, मतलब दैट शोज योर इंटेंशन। Police may not take the responsibility of that goods or custody of the goods. Sometimes it may be in under your condition, your in your custody. But here you can claim for the whatever expenses you did against to hold that goods and to find the owner. And last is liability of the person to whom money is paid or things delivered by mistake or under coercion. Now there is the last two words in most important, that is by mistake or under coercion. If what is the liability means is you have to pay liability of a person. For example, if there is one transport company is going to
is going to transport your raw material from the uh, in your factory. But but as he knows that this product is very important for you, his intention might be change, and his intention change to ask you more money to unload your product on due date, with proper in proper circumstances. Otherwise he is not ready to pay to provide your to deliver your goods. This case is केस ऑफ कोवर्जन. अगर वो डरा धमका के आपको ये बोल रहा है कि अगर मुझे ज़्यादा पैसा नहीं दिया तो मैं आपका गुड्स आपके फैक्ट्री में डिलीवर नहीं करूँगा. अब आपको पता है कि दैट वो शायद पेरिशेबल भी हो सकता है, वो बहुत आपके लिए कीमती भी हो सकता है, वो पेरिशेबल नहीं भी हो, बट उसके बिना आपका प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ सकता है. एंड यू आर अगेन अंडर द ऑब्लिगेशंस टू पे द फिनिश गुड्स टू द अनदर पार्टी. ऐसे केस में अगर आपको कोई अगर डरा धमका के अगर ज़्यादा पैसे मांग रहा है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी, सो दैट केस इज़ द पार्ट ऑफ कोवर्जन. बट बाय मिस्टेक सम पर्सन इज ट्रांसफर्ड द मनी. अगर किसी गलती से किसी बंदे ने आपको अगर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया आपके अकाउंट में. अगर फॉर एग्जांपल यू पे 2 लाख रुपीज़ टू योर फ्रेंड, बट बाय मिस्टेक he transferred in return to you 3 lakh rupees. So in that case it is the mistake. So it is your responsibility to transfer the excess of amount to the person, right? So therefore this is the last case of quasi contract, that is liability of person to whom money is paid or things delivered by mistake or under coercion, right? ये आपको बाय मिस्टेकली अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया, बाय कोवर्जन आपसे कोई किसी ने अगर पैसे ज़्यादा ले लिया तो उनको भी आपको पैसा देना चाहिए. आपको पैसा देना ही पड़ेगा. और जिसके पास मिस्टेक से पैसा आया है उसको भी आपको पैसा वापस देना पड़ेगा. और यहाँ पे फिर वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करता है कोर्ट, right? So this is the sections of quasi contract from section 68 to 67. I hope you understand the meaning of quasi contract and various cases of quasi contract. So, for more details we will meet very soon. Thank you.